In the system of particles, there are only two members, like a molecule of HCl. So there are two members in the system. One is H and one is Cl. So this is two particle system. There may be any two particles. We will join the center of mass. These are two particles. First we consider as point objects. There are two particles. This has got mass m1. Mass m2 is placed at this point. There is certain distance between them. This, and we have to find center of mass of this particular system. Okay, let us assume center of mass anywhere between the two. Here. Okay, then there are now three locations we know: location of mass m1, location of mass m2, and location of center of mass. If now we have to consider one point as origin, and this is arbitrary. जहां आपकी इच्छा हो, तीनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, उस एक को आप ओरिजिन मान सकते हैं. You are free to do that. Okay? So let's try. This is A, this is B. Let's take A as origin. If A is origin, then what are the distances of other points? From origin, the center of mass, we have to calculate it. This is R. From A to B, there is certain distance. Let us say this distance is R. Or if there may be any confusion, let us say this distance is X. Okay? No other distance is required now. Now, what is the distance of point A from origin? Where is the origin? Origin is at A. So the distance of A from A is 0 because it is on that point. So from our origin, the distance of A is 0. The distance of center of mass is R. The distance of B is X. And there is no any other point. 3 points are there. Okay. Now you have studied the formula. R is equal to M1 R1 plus M2 R2 up to and there are only 2, so we will keep only 2 divided by M1 plus M2. Okay. Now M1, mass M1. What is the distance of A from our origin? 0. So this will be 0. And how much will be this? 0. So from next question onward, we will not write it, taking it in one step, that this is 0. Plus M2 into X divided by M1 plus M2.
this is calculation of R. M2 upon M1 plus M2 multiplied by X. Now this distance R, ये R हमने कहां से नापा है, किस ओरिजिन से? तो आंसर है A से नापा है। तो आपको याद रखना है ये R कहां से है? A से। ओके, अगर ये डिस्टेंस हमको B से नापना होता, यहां से यहां का डिस्टेंस RB, हमने ओरिजिन पहले किसको माना था? A को। क्या हम B को ओरिजिन मान सकते थे? आंसर इज यस, B को ओरिजिन मान सकते थे। B को ओरिजिन मानकर कैसे बनेगा ये देखिए, लेट अस कंसीडर B एज ओरिजिन। तो B से पहले आप तीनों के डिस्टेंस बताइए। B से A का डिस्टेंस कितना है? X। B से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? RB। B से B का डिस्टेंस कितना है? 0। और उसके बाद यहां पे हमने स्टार्ट किया, अपना फॉर्मूला अप्लाई किया। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट B, दिस इज इक्वल टू M1 R1 M1 into X plus M2 R2, this is M2 and what is its distance? 0. So M2 into 0 is 0. We don't have to write it. Upon M1 plus M2. This is distance from M2. यहां से अगर डिस्टेंस नापेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर इधर से डिस्टेंस नापेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, लेकिन उसकी लोकेशन वही आएगी। जैसे सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये आया है आंसर 3 और ये आया 7, तो इधर से नापेंगे तो 3 आएगा आंसर, इधर से नापेंगे तो 7 आएगा, पर पॉइंट तो यही आएगा C। ठीक है, ओके। तो इससे अब एक चीज और याद रखिए, इन टू पार्टिकल सिस्टम द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज टू बी ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। नोट करिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम lies on the line, joining the two particles, ठीक। अब एक क्वेश्चन, हाँ जी, ये सब नोट करिए। It is a two-particle system. HCl molecule, separation between the nuclei. The separation between the nuclei is 1.27. 1.27 into 10 to the power minus 10. Angstrom के लिए हमने लिखा 10 to the power minus 10 meter. Okay, so this is H, this is Cl. And we have to find center of mass. Center of mass will be somewhere, let us say is here. The distance of center of mass, किधर से distance मानना पसंद करेंगे? H से कि Cl से? ठीक है, कहीं से भी मान सकते हैं। Let us take it from H. Let the distance be R. Okay. अब origin कहाँ मानना चाहते हैं? ओरिजिन H पर, ठीक है, H पर हमने ओरिजिन मान ली। लेट द ओरिजिन बी एट H। ओके, अगर H पर ओरिजिन है तो तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस तीनों के नीचे लिख दीजिए। ओरिजिन से H का डिस्टेंस कितना है?
ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से Cl का डिस्टेंस कितना है? 1.27 इंटू 10 टू द पावर -10। ये तीनों के डिस्टेंस आपने लिखी है। अब शुरू कर दीजिए। R इज इक्वल टू व्हाट? ये सबको मालूम है। R का फॉर्मूला M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, M2 यस। M1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे और M2 की कितनी लिखेंगे? हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो Cl का कितना है? यस, 35.5। तो ये हमने लिया। M2 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स राइट M2 फर्स्ट। 35.5 into 1.27 10 to the power -10, and this is to be divided by M1 plus M2, 1 plus 35.5, this is 36.5, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। So this comes to 1.235 into 10 to the power -10। इसको हम राउंड फिगर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे राउंड फिगर? बिकॉज इन आवर क्वेश्चन यस ओनली अप टू 2, सो दिस विल बी 1.24 10 to the power -10. This we can convert into angstrom. So the distance from hydrogen is 1.24 angstrom. This is the distance of center of mass from hydrogen. ये किसके बहुत क्लोज आ गया? क्लोरीन पे, राइट? टू पार्टिकल सिस्टम M1 M2, दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब हम क्या करते हैं? अपनी ओरिजिन को चेंज करते हैं। लेट अस चेंज आवर ओरिजिन टू M2। तो M2 से क्या होगा? M1 इंटू दिस डिस्टेंस, हाँ, प्लस 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये आप लोग समझते हैं। अब ये सोचिए, अगर हम ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? सो इफ ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, if origin is at center of mass, सेंटर ऑफ मास से एक ऑब्जेक्ट रखा है r1 डिस्टेंस पे, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है r2 डिस्टेंस पर। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा? तो देखिए, सेंटर ऑफ मास से तीनों का डिस्टेंस बताइए। सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस है r1, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है? 0, और सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस कितना है? r2। अब हमारा इक्वेशन क्या कहता है? r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेट अस पुट वैल्यू। ओरिजिन कहाँ लिया हमने? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन लेने से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। m1 r1 will be m1 r1 m1 r1, m2 r2 will be m2 r2 m2 r2, and if you want you can put minus here because it is on the other side, it is on this side। तो एक को अगर आप इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको प्लस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यू कैन मेक इट एनी, क्योंकि एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 में
सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, दैट इज ऑलवेज एडिशन. ओके, नाउ दिस पार्ट मल्टीप्लाई विद 0, bring it here. Yes. So what do we have here? m1 r1 plus m2 r2 is equal to 0, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए. So what do we get? m1 r1 is equal to m2 r2. So r1 upon r2 is equal to m2 upon m1. यहां पर किस ओरिजिन को मानकर काम कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास. ओके, इसका मतलब क्या है? हाँ, r1 r2 डिस्टेंस है और m1 m2 मास है. अब देखिए, जो पार्टिकल का मास m1 है वो कितने डिस्टेंस पे रखा है? r1. किससे ये डिस्टेंस नाप रहे हैं? सेंटर ऑफ मास. r2 भी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से m2 ऊपर है. तो ये हम क्या देखते हैं, इनका प्रोपोर्शनेट कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. इनवर्सली मतलब अगर m1 की वैल्यू ज्यादा है तो r1 कैसा होगा? कम. अगर m1 की वैल्यू ज्यादा होते जाएगी तो r1 कैसा होता जाएगा? कम. मतलब ये इधर आता जाएगा ऐसे. r1 कम होने का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास इसके पास आते जाएगा अगर m1 की वैल्यू ज्यादा हो. इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, जो चीज भारी होती है सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज आते जाता है, उसके नजदीक आते जाता है. अब देखिए H और Cl, इन दोनों में कौन भारी है? Cl इज हैविंग मोर वेट. तो सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होगा? Cl के क्लोज होगा. तो इसके रिजल्ट को हम लिख लेते हैं. इट शोज दैट R is inversely proportional to M. If M is large, distance R is small. That is, इसका क्या मतलब है? That is, center of mass is closer to heavier mass. ये चीज आपको बिल्कुल रटी रहनी चाहिए. अगर गलती से आपका आंसर जो आया उसमें आप देख रहे हैं कि हैवियर वाले के नजदीक नहीं आया है, तो उसका मतलब है आपसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है. इसलिए हमेशा सेंटर ऑफ मास किसके पास आना चाहिए? हैवियर मास के क्लोज आना चाहिए. इफ देयर इज अ सिस्टम ऑफ मून एंड अर्थ विच इज मूविंग अराउंड सन, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है. तो मून और अर्थ पूरा एक सिस्टम है जो सन के चारों तरफ घूमता है. अब उसमें उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले ये हम सोच लेते हैं अर्थ मून सिस्टम. अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कहां पर होगा? आंसर है इट विल बी ऑन द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून. उसके बाहर नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2, किसके नजदीक होगा? अर्थ के नजदीक होगा. राइट. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. ये सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी हो गई. अब सेंटर ऑफ मास की एक दूसरी प्रॉपर्टी देखिए. यहां पर हम लोगों ने किया m1 r1 प्लस m2 r2 दैट इज इक्वल टू 0. मान लीजिए यहां पर और भी बहुत सारे मासेस हैं. This is a system and this is center of mass. Here is m1
इसी को हमने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन से m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, वेक्टर की भाषा में बात कर रहे हैं। m2 इसका वेक्टर r2 है, r3, r4, r5, इस तरह से सबके अलग अलग पोजीशन वेक्टर हैं। हमने इसको ओरिजिन माना। अगर इसको ओरिजिन माना तो इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आया? 0। उसी को ओरिजिन मान रहे हैं और उसी का डिस्टेंस ले रहे हैं, 0। अच्छा, अब इसको फॉर्मूला में फिट करिए। हमने जो फॉर्मूला बनाया था, अगर हम उसमें इसको फिट करेंगे तो वो फॉर्मूले में पहले क्या आता है? r, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू रखिए। यहाँ पर r की आप वैल्यू कितनी रखेंगे? इसी को ओरिजिन माना है। r की वैल्यू क्या आएगी? 0, डिराइवेड 0। और ये नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 0। तो 0 इज इक्वल टू व्हाट? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस दिस जितने पार्टिकल हैं सबका m n r n, अगर n पार्टिकल हैं। और इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? सिग्मा m I r I, where I is changing from 1 to n। ये तरीका आपको लिखने का मालूम है। m1 r1 प्लस m2 r2 कहां तक जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। This is equal to how much? 0। So m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 is equal to 0। इसमें एक छोटी सी शर्त लगी हुई है। क्या शर्त लगी हुई है? ओरिजिन कहां लेना है? सेंटर ऑफ मास। और ये सब डिस्टेंसेस, सब पोजीशन कहां से नापी गई हैं? सेंटर ऑफ मास। So if all the distances are measured from center of mass, then m1 r1 m2 r2 m3 r3 सब मिलाकर कितना हो जाता है? 0। ये एक थ्योरम बन गया और इस थ्योरम को हम लोग याद करेंगे, आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्या आपको याद है इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? m1 r1? वेरी गुड, मोमेंट। सो मोमेंट ऑफ मास around center of mass, moment of mass m1 around center of mass is how much? m1 in no मेरी बात सुनिए। m1 ओरिजिन से कितना दूर है? r1। so what is moment of m1? m1 r1, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं moment of mass m1 प्लस moment of mass m2 plus moment of mass m3, sum of all the masses are equal to 0। फिर से सुनिए और कम इसको वर्ड्स यूज करते हैं। the sum of moments of all the masses about center of mass। about center of mass बोलने से क्या हो गया कि हमारी ओरिजिन कहां है? so रिजल्ट को अब हम इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द मासेस अराउंड सेंटर ऑफ मास इज 0। ये इसका प्रूफ है। ये जो आपको डिटेल आपने देखी, ये इसका प्रूफ करने के लिए आपको नहीं आता है कभी एग्जाम में।
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज होती है कोई नई चीज नहीं है, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसी से ही हम लोग अलग अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं। पहले हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होता है, हेवियर मास के क्लोज होता है। अब ये दूसरा रिजल्ट हमने क्या निकाला, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अराउंड सेंटर ऑफ मास इज 0। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के एग्जांपल क्या है, H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, NH3 3+1 4 पार्टिकल्स। ये जो 1 से 2 से ज्यादा पार्टिकल हैं, इनकी लोकेशन कैसी होगी, जरूरी है या मे नॉट बी नेसेसरी कि ये सब एक लाइन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो ये स्पेस में कहीं पर भी लोकेटेड है, यहां पर M1 है, यहां M2 है, M3 पीछे है और M4 आगे। तो ऐसे वाले पार्टिकल मिलाकर एक सिस्टम हमारा बन रहा है, और नॉर्मली सब सिस्टम ऐसे ही होते हैं जैसे ये। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सब कॉर्नर्स, कोई भी पार्टिकल आप लीजिए एक लाइन में नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो हम किस तरह से उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो उसका मेथड याद करिए। उसका मेथड समझ लीजिए कि हर पार्टिकल का हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट फिक्स करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फिक्स अप x, y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पार्टिकल। Find out x, y, z coordinate of each particle. Let x cm, y cm, z cm be the coordinates of center of mass. ओके, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z, इनका उनके कोऑर्डिनेट से एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। जैसे हमने कोई एक चीज ये ली है और इसके जो पार्टिकल्स हैं आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ है, हर एक का x अलग है, y अलग है और z अलग है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा। वो जो सेंटर ऑफ मास है क्या वो एक प्लेन में है, आंसर इज नो। उसके भी 3 कोऑर्डिनेट हैं, कुछ x डिस्टेंस पे होगा, कुछ y डिस्टेंस पे होगा और कुछ z डिस्टेंस पे जाएगा। जैसे इस कमरे का अगर हमको सेंटर चाहिए और ये ओरिजिन हम मानेंगे, तो इस ओरिजिन से पहले x जाना पड़ेगा, फिर y जाना पड़ेगा, फिर z जाना पड़ेगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास दिखेगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास के अपने कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका आंसर जो हम देंगे वो किसी भाषा में ही देंगे। सेंटर ऑफ मास का एक डिस्टेंस ना निकाल के हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर भले बाद में उसको एक डिस्टेंस में हम ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे करना है देखिए। अब x वाले डिस्टेंस जितने होते हैं सब एक ही तरफ होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, ये x वाले डिस्टेंस। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला आपका बन जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस जितने भी पार्टिकल। वेरी सिंपल। अब ये परमिटिबल है, क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन किधर है, x की तरफ। इसी तरह से y coordinate of center of mass, this will be m1 y1 plus m2 y2 plus so much
divided by m1 plus m2. Z coordinate is m1 z1 m2 z2 plus divided by m1 plus m2. इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है अगर हमारे सिस्टम में दो से ज्यादा पार्टिकल्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को ऐसा सिस्टम दे दिया जाता है जिसमें दो से ज्यादा बॉडीज हो। जैसे ये लिख लिया सबने? ओके, अब सुनिए, हमको एक क्वेश्चन दिया गया, देयर आर 3 balls, each of radius r, they are put together on the ground touching each other such that each one is touching the other two. तो हमको समझ में आ गया, तीनों को मिला के रख दिया गया। Now we have to find out center of mass of this system. अब इसमें 3 पॉइंट मासेस नहीं है, 3 पार्टिकल्स नहीं है, 3 बॉडीज, तो हमारा एक स्टेप बढ़ गया। ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर कोई हमको बॉडी दी जाती है तो सबसे पहले हम उस बॉडी का अकेले का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो हम क्या मान लेंगे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से कि उस पूरी बॉडी का मास कहाँ लोकेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे। उसका पूरा मास हमने वहां पर लिख लिया और बाकी बॉडी को हम भूल गए। The same question I am telling you, there are 3 balls which are placed touching each other. Each has got mass m and the radius of each one is r. Find out center of mass of this system with respect to center of one ball. यहां से हमको इसके रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हमने जो कुछ पढ़ा है वो सब किसके बारे में है, पार्टिकल्स, पॉइंट मासेस, और यहां पर हमको क्या दे दिया है, बॉडीज बड़ी। तो पहला काम हम ये करते हैं, इट इज ए स्फीयर। स्फीयर का पूरा मास कहां कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ मास में। वी कैन सपोज दैट द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। इसका यहां पर और इसका यहां पर, ये तीनों। तो यहां पर कितना मास रखा है, m। यहां कितना मास रखा है, m, और यहां पर m। ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना है, ये r और ये r, 2r, 2r, 2r। ठीक है, ये ऐसा आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये वाला, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज ऐसे हो गया। देयर आर 3 पार्टिकल्स ऑफ मास ईच, m मास ईच, point particles, and the distance between them is 2r, 2r, 2r. Find out their center of mass. अब हमने इसका, अब हमको इससे कोई रिलेशन नहीं है। Now we have only this one. और हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाल देगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, we have converted body into point, keeping all the mass on the point. तो ये स्टेप लिखिए, स्टेप 1, step 1, if there are large bodies, then the body is converted into symmetrical parts. Body is converted into symmetrical parts, and center of mass of each part is taken. Center of mass of each part is taken,
as if the mass of that part is located at that point. As if mass of that part is located at that point. ये हम लोगों ने यहां पर किया। हर स्फीयर का मास कहां लोकेटेड मान लिया, उसके सेंटर पे। सेकेंड पार्ट, number 2, with help of the number 2, consider one origin and with reference to that origin calculate coordinates, ब्रैकेट में लिख लीजिए x y z of each point. Calculate coordinates of each point. Then step number 3, calculate x, y, z coordinate of center of mass. Calculate x, y, z coordinates of center of mass by using the formula. ओके, अब यही वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से, there are 3 balls of mass m, radius r, placed in contact with each other. This is one, this is the second, and this is the third. ये इनके सेंटर हैं, हर एक का रेडियस r है। नाउ हर एक का मास m है, तो हमारे फर्स्ट स्टेप, इधर ध्यान दो, फर्स्ट स्टेप से हम क्या करेंगे, इस बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक पॉइंट। यहां पर इस पॉइंट में कितना मास रखा है, यहां पर m, this distance is 2r, this is 2r, and this is also 2r. This is by geometry. Okay? अब हम इस सर्कल, इस स्फीयर को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये 3 पॉइंट को देख रहे हैं। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 आपने नोट किया है, कंसीडर वन ओरिजिन, जहां से हम डिस्टेंसेस को नापेंगे। तो आप किसको ओरिजिन मानेंगे? तो बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी एक पॉइंट को जहां मास रखा है उसी को ओरिजिन मान लीजिए। क्यों ऐसा करते हैं हम? ताकि एक डिस्टेंस 0 हो जाए और हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ओके, सो लेट अस कंसीडर द सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉल एज ओरिजिन। ओके, ये हो गया। अब इसको ओरिजिन मानने के बाद क्या करना है, आपने आगे क्या नोट किया है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पार्टिकल। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। इस पार्टिकल से, यहां इस ओरिजिन से ये वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है, 0। एक्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, 0, y की डायरेक्शन में 0, z की डायरेक्शन में 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 0, x y z। ओके, अब इसमें दूसरे पार्टिकल पर आइए। दूसरे पार्टिकल में देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है, x एक्सिस कहां है,
इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, क्यों? क्योंकि एक्सिस मानना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज आर्बिट्रेरी मीन्स हम उसको मानते हैं। तो हमने इसको ओरिजिन माना और इसको एक्सिस माना। ऐसे एक्सिस मानने से ये लाइन किसमें आ गई? एक्स कोऑर्डिनेट में आ गई। अब बताइए ये वाले पॉइंट का एक्स कितना हुआ? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 2r, यहां से r एंड r 2r। अब बताइए इसका y कितना है? इसकी हाइट कितनी है? 0। वेरी गुड। और इसकी डेप्थ कितनी है अंदर की तरफ? 0, क्योंकि ये तो इसी प्लेन पर बना हुआ है, तीनों एक ही प्लेन पर होंगे बॉल के। ओके, अब इसकी बात करते हैं। Two, 2, 2. This is x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। बताइए x3 कितना होगा? वेरी गुड। यहां पर ओरिजिन है ऐसे, और ऐसे चलाना शुरू किया। कितनी दूर जाने से ये पॉइंट आ गया? r दूर पहुंचे, ये पॉइंट आ गया। तो x की तरफ कितना स्लाइड करना पड़ा? r। तो x3 की वैल्यू r। y3, y हम किधर लेते हैं? हाइट। यहां से इस लाइन से इसकी हाइट निकालनी है। कितनी लेनी हाइट? 2r चलेगा? यस, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हाइट ये होती है x डायरेक्शन। दिस इज 2r, दिस इज 1r, और पाइथागोरस लगाइए। 2 to the 4 minus 1 3। तो ये कितना हो गया? √3r। तो दिस विल बी √3r, because this is 2, this is 1, पाइथागोरस से ये आ गया √3r। अब z कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये तीनों एक ही लेवल पर है, अंदर और बाहर नहीं है। तो तीनों का z कोऑर्डिनेट क्या दिया हमने? 0। हम चाहें तो अपनी कैलकुलेशन से z को गायब कर सकते हैं। z को गायब कर देंगे तो ये और ये ऐसा। तो हमको सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ x और y। ठीक है, अगर तीसरा होता z तो z भी निकालते। अब यहां पर आ जाए, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? बॉडी को किसमें कन्वर्ट करना? पॉइंट मास। सेकंड पार्ट क्या था? एक ओरिजिन मानना और ओरिजिन से हर एक का एक्स वाई जेड नोट करना। वो हमने तीनों का कर दिया। थर्ड पार्ट फॉर्मूला लगा। अब z का तो हमने लगाना नहीं है, वो सब 0 था, ये 2 लगाना है। तो शुरू करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1, m1 x1, x1 कितना है? 0। तो m1 x1 भी कितना होगा? 0 प्लस m2 x2, बोलिए m2 की वैल्यू m, x2 की वैल्यू 2r, प्लस m3 x3 m into r divided by sum of all the members m and m. So this is m plus m plus m. अब आप देखिए ये बना 3m और इसमें से m कॉमन निकला, कैंसल हो जाएगा, एंड दिस विल बी 3r upon 3. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? r। चलो अब y कोऑर्डिनेट आप अपने आप निकालिए।
आर बाई हाँ r/√3 या √3 r/3। तो ये क्या कहा गया, y कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमने आंसर क्या लिखना है, सेंटर ऑफ मास एज कोऑर्डिनेट ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहां से हम r इधर आए और r/√3 ऊपर उठे, यहां पर हमको इसका सेंटर ऑफ मास मिला। ओके, फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टेक द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, टू कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट मासेस। और अगर ये रेगुलर शेप नहीं है, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास किसका पता होता है, रेगुलर शेप्स का, जो सिमेट्रिकल शेप्स होती है। ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। तो आंसर है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, सिमेट्रिकल शेप्स में। और हम सबको दिख रहा है, वी कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस। अब ये क्या बन गए, 3 स्क्वायर। हर स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, एट द सेंटर क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये हमको पता है। अब ये रेगुलर शेप्स बन गई और इनका सेंटर ऑफ मास हमने यहां पर निकाला, दिस एंड ये सेंटर ऑफ मास। ओके, इसको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस। We already know that it is there, so let's put it. ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या था, टू कन्वर्ट द गिवन शेप इन पार्ट्स। उसके ऐसे पार्ट करना जो कैसे हो, सिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल का सेंटर ऑफ मास हमको पता होता है। तो हमने इसके 3 पार्ट कर दिए स्क्वायर्स, और हर स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सेंटर। तो ये सेंटर ऑफ मास थी। अब हमको पूरा लैमिनेट नजर नहीं आता, हमको सिर्फ 3 पॉइंट नजर आते हैं। और इन तीनों पॉइंट के मास बताइए। इसका टोटल मास कितना है, 3 है। तो हर स्क्वायर का मास कितना, 1 है। 3 स्क्वायर बने, और स्क्वायर का मास कहां लोकेटेड माना जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो यहां कितना मास रखा है, यहां पर m, यहां पर भी m। ये 3 पॉइंट मासेस यहां पर रखे हैं। अब हमारा सम चेंज हो गया, हमने सोच लिया देयर इज नो लैमिनेट, देयर आर 3 पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास m लोकेटेड एट दीस 3 पॉइंट्स। ये हमारा पहला स्टेप होता है, समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, एक ओरिजिन मानिए, एक्सिस मानिए, और हर एक का XYZ निकालिए। अब चूंकि ये एक बोर्ड पर ही दिख रहा है, प्लेन लैमिनेट है, इसमें भी Z कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसलिए हम सिर्फ क्या निकालेंगे, X और Y। ओके, तो ओरिजिन कहां मानना है, ओरिजिन हम कहीं भी मान सकते हैं, हमारी इच्छा है। अब चूंकि क्वेश्चन हमने लैमिनेट से स्टार्ट किया था, इस लैमिनेट से, तो आई विल सजेस्ट कि लैमिनेट का एक कॉर्नर आप ओरिजिन मान लीजिए, ये वाला कॉर्नर, लेट दिस बी ओरिजिन। लेट कॉर्नर ऑफ द लैमिनेट बी ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ओके, अब जल्दी करिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, x का डिस्टेंस कितना, y का डिस्टेंस कितना। यहां से इतना ऐसा गए, कितना दूर आ गए, L की L/2। यस, यहां से यहां तक 2L है, यहां से यहां तक L है, इसलिए
देखिए यहां से यहां तक कितना होगा L/2। हाइट बताइए, सेम L/2। ये इसके x और y कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 y1 L/2 एंड L/2। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट बताइए। x2 यहां से यहां गए, कितना दूर जाना पड़ा, ये हो गया 1L और ये हो गया हाफ L, दोनों मिला के कितना हुआ 3/2L। y2 इसकी हाइट कितनी होगी L/2, ये y2 की वैल्यू हो गई। चलो अब y इसका 3 का बताइए, x3 y3। x3 यहां से ऐसे गए, कितना करेक्ट L/2 और y3 बोलो 3L/2। पता लग गया, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। हर एक का हमने कोऑर्डिनेट पता लगा दिया, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मूला लगाना, लगा दीजिए फटाफट। चलो निकालिए x CM हाँ जी, समझ आया। पहले का x कोऑर्डिनेट 0 ना, सॉरी मैंने गलती कर दी। पहले का x कोऑर्डिनेट L/2, दूसरे का x कोऑर्डिनेट 3/2L, तीसरे का x कोऑर्डिनेट L/2। ये बन गया m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 3m। ये हमारा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट। हाँ जी, किसी ने निकाला, कितना आया 4/5/6 5/6। दिस इज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल के देखेंगे, इट कम्स सेम 5/6L। सो आंसर with respect to one corner, center of mass is at x is equal to 5/6L and y is equal to 5/6L। ये हमारा आंसर आया इसका। अगर आपने लोकेशन मार्क करनी है तो यहाँ मार्क कर सकते हैं, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक L है, 5/6 थोड़ा सा अंदर आएगा, यहाँ से ये L है 5/6L थोड़ा सा अंदर आएगा, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लेंथ 5/6L 5/6L। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ओके, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसके बाद सेंटर ऑफ मास की क्वालिटीज और थोड़ी सी और कैलकुलेशन हम लोग फिर अगली क्लास में करेंगे।